Good morning, ma'am. Good morning. Morning, everyone. Switch on your cameras. Am I audible? आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, ma'am. Okay, switch on your cameras. Okay. In today's class, we're going to start with organization development, right? We have already started with organization development, but I was giving you some introduction about the words which are going to be very frequently used in organization development. What exactly we did in the last class? Can you tell me? Did we deal with what is environment? No, Kalpana, I'm not mute. No, ma'am. Kalpana is messaging me, ma'am, you're mute. I'm not mute. If you cannot unmute yourself, unjoin and then rejoin. Sometimes it so happens. Can you tell me briefly what all we did in the last class? Kalpana, I have not muted you. You unjoin and then you rejoin. कभी कभी एरर होता है नेटवर्क में, आप अनजॉइन हो जाइए, वापस रिजॉइन कर लीजिए. Switch on your videos, everyone. Okay, Muskan, did we deal with what is environment? आवाज आ रही है आप लोग को? I hope I am audible. There's no problem in. Can you all get the voice? क्योंकि इतना joining. Can you get my voice?
Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Then why weren't you answering, all of you? Okay, switch on your videos now and let's start the class. It's already late. I thought there is some glitch in the network, that is why. Okay. Muskan, can you please repeat what we did in the last class? The last topic. Did we deal with environment? Can't you unmute? No. What is this problem then? Wait. See now. Can you unmute? Has Akanksha joined? Yes. Akanksha, switch on your video. Yes. You can unmute yourself, no? Yes, ma'am. Okay. What is the problem with others? It never used to happen anyway. Okay. Akanksha, can you please repeat what we did in the last class? Akanksha? Ma'am, What happened? sorry. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बता रही थी, उसमें माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट बताई थी. एनवायरमेंट बताया था, पूरा डील हो गया था एनवायरमेंट से. यस मैम. माइक्रो मैक्रो हो गया था आप लोग का. यस मैम. ओके. नाउ इन दिस क्लास वी विल डील. देखो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के समय में धीरे धीरे जस्ट ट्राई टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट. ओके. Akanksha went completely blank. She was looking at the screen and I was asking Kanksha, and she went completely blank. Anyway, organization development. See, organization. अच्छा, आप लोगों ने ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनीज का नाम सुना है? जैसे मैकेंसी है या कंसल्टेंट ग्रुप जो होता है जैसे डेलॉइट है, नाम सुना है इसका? No, ma'am. No. Anyway, see, McKinsey, this is a management consulting company. This is a company which hires only the best people of the world, you know, people from Harvard and people from IIMs. These are the top brains of not just India, but from brain. These are also those people who are responsible for organization development. अब देखो organization development होता क्या है? Organization development का मतलब होता है एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी which will focus on changing the culture of the organization. आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई कल्चर चेंज करने में अगर फोकस रखता है, which is a long term strategy, then that is known as organization development. Never confuse organization development with career development and managerial development. ये दोनों words भी equally important है, and you will come across these words, but do not confuse it with this. आपके training and development में module में I did not see much part of development, so I did not deal with it in elaborate form. लेकिन management development के बारे में थोड़ा सा जान लो कि management development का मतलब होता है कि जो managers होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, those key positions, people at these key positions have to be trained and developed. So while you studied about training is a short term process. यानी
ट्रेनिंग इज मोस्टली जॉब ओरिएंटेड। जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो जनरली किसी जॉब को दिमाग में रख करके दी जाती है कि आपने ये जॉब परफॉर्म करना है, इसलिए आपको उस जॉब के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट इज ऑलवेज करियर ओरिएंटेड। ये अगर तुम्हारा डेवलपमेंट होता है, तुम डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज करते हो जो जनरली ऑफ द ट्रेनिंग मेथड से होता है, then what happens is that there is an all round development in you, your thinking, your strategy building, your contemplation, your behavior in specific, that changes. It is an attempt towards an overall development of your personality. This will be known as managerial development. Okay, now talking about organization development, it's a long term process. हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये तुरंत से नहीं होता है। और ये क्या एम करता है? दिस एम्स एट चेंजिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, सिमिज कॉलेज में तुम लोग पढ़ते हो, इस कॉलेज का कोई कल्चर होगा, ठीक है? जैसे यूनिफॉर्म किसी कॉलेज का होना या ना होना, ये भी उसके कल्चर का पार्ट है कि हम इस कॉलेज का कल्चर फॉलो करते हैं। जैसे एन कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है, राइट? सो दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। वुमेन्स कॉलेज में यूनिफॉर्म है, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तुम्हारे कॉलेज में यूनिफॉर्म है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। ओके, उसके अलावा यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर। कि आप टीचर से फ्रैंक होके क्वेश्चन पूछ पाते हैं कि नहीं, टीचर्स को अपना प्रॉब्लम बता पाते हैं कि नहीं, अगर किसी स्पेसिफिक टीचर से आपको कोई कंप्लेंट है, देन आर यू एबल टू पुट इट फॉरवर्ड और नॉट। ये सब कल्चर का पार्ट होता है। अब यहाँ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करो तो ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज को कन्वर्ट करो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में। तुमने ये सुना होगा कि लोग कहते होंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत खराब है, कि सुने हम? Yes, ma'am. What do you mean when somebody says this? क्या समझ में आता है इससे, बताइए। कोई भी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है। फिर से बोलो मुस्कान। मैम, कोई भी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होता है। हाँ, मैनेजमेंट सही से नहीं होता है, या फिर अगर मैनेजमेंट सही हो उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे या तो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है, अब सही नहीं होने में तो गलत होने के लिए तुम बहुत सारे रीजंस दे सकती हो ना। जैसे कि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप खराब है। आप जनरली सेल्स और मार्केटिंग टाइप के जॉब में देखेंगे कि आपको एक टारगेट दे दिया जाता है विच इज प्रैक्टिकली इनफीजिबल। ओके, और उस सेल्स को अटेन करने के लिए आपके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर है, और आपका जो बॉस है वो अब्यूजिव है। अब्यूजिव इन द सेंस, लिटरली गाली देना को अब्यूजिव नहीं कहते। अब्यूजिव का मतलब होता है आपका मेंटल ह्यूमिलिएशन भी अगर हो रहा है, आपका सोशल ह्यूमिलिएशन भी हो रहा है, तो उसको एक अब्यूजिव बिहेवियर में माना जाएगा, ठीक है? विच विल raise a question on the kind of respect you are getting in the organization. ये भी एक खराब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट होता है। Second thing, openness about the culture is also a very remarkable feature of any organization. जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी towards the good end of ऑटोक्रेटिक अप्रोच होता है। अगर ऑटोक्रेटिक अप्रोच है तो क्या वहां लोगों को अपना कम्युनिकेशन करने में ओपननेस है? आर पीपल एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली? ओके, क्या आप अपनी बात रख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों? जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, आपके पीयर ग्रुप के बारे में, आपके सबऑर्डिनेट के बारे में, आपके सीनियर के बारे में, आर यू एबल टू पुट इट फॉरवर्ड प्रॉपरली? This is also a part of culture. Okay, how you are treated, how much the organization thinks about your welfare, ये भी एक part of culture है। तो जो organization development है, it's a long term strategy which thinks about changing the culture of the organization. अब
हम लोगों ने फ्लॉ डिस्कस किया कि कल्चर में क्या क्या फ्लॉ आ सकता है, कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से you need organization development change. Also, there could be reasons like growing interpersonal conflict in your organization. We have all studied in the previous chapters that, and in general also you should know this, that organization आज की डेट में टीम वर्क पे बहुत फोकस करती है. Okay, you just cannot be individually very good and you cannot coordinate in your team. No, this kind of behavior, this kind of nature is truly not desirable in today's era of dynamic business. जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपके टीम पे 6 से 7 मेंबर्स अलॉट किए जाते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि यू परफॉर्म वेल इन दैट टीम. ओके, मान लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला. ठीक है, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है. You are not getting along with your team members. You're not getting along with your juniors or for that matter your seniors. Then what? Okay, then it means कि कहीं तो कुछ कल्चर में प्रॉब्लम है, कहीं तो कुछ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफिशिएंसी है जिसको ओवरकम करने के लिए एक प्लान चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए. अब वो स्ट्रैटेजी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ training. That strategy could be in the form of any change in policy, procedure, or for that matter, any kind of program that needs to be implemented in your organization. इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो तुम लोग लिखते जाओ, हम समझाते जाएंगे, फिर ओडी समझ में आता जाएगा. एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को थोड़ा मॉडल्स, ये इस चैप्टर में तुम्हारा 3-4 मॉडल है वो डिस्कस करना है. ओके, राइट डाउन. Organization development, heading though, is a long-term strategy which focuses on the whole culture of the organization, in order to bring about planned change. It seeks to change. Sorry, ma'am. It seeks to change, SEEKS. It seeks to change attitude, value, and structure in fact the entire culture of the organization so that the organization may better adapt to technology, so that the organization may better adapt to technology and live with the pace of change. Okay, answer one question. What in general do you understand by culture? अभी organization culture पे मत आइए,
सिर्फ एक जनरल डिस्कशन कीजिए कि बहुत ज्यादा कल्चर वर्ड यूज होगा ओडी पढ़ाते वक्त। तो आप बताइए, एनवायरमेंट यू अंडरस्टूड, आई एक्सप्लेन्ड यू द एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी यू ऑलरेडी नो, and one more element, two more elements that I must discuss before proceeding this class is, one is culture and the other one is people. Okay, what is culture? Please come up with your own answers. I do not expect the Ma'am, culture belongs with religion, religious thoughts or rules. Okay. But tell me, Muskan, you're saying religious thoughts. पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन होता है उसका एक कल्चर होता है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो का भी एक कल्चर था, वो तो एक रिलीजन नहीं था सर। द सेकेंड थिंग इज, अगर तुम सिर्फ हिंदू कल्चर की बात करो, अलग अलग कास्ट में भी अलग अलग कल्चर है एंड वी फॉलो दैट, वी हैव आवर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। अगर शादी होती है तो आपको कल्चर का चेंज देखने को मिलता है, जो रस्म रीति रिवाज होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर ओन कास्ट, इवन इफ यू बिलोंग टू वन कम्युनिटी, राइट? Others, just come out with what you think about culture. Everyone, not just Muskan, both Muskans, Anisha, only these three are there in the class. मैम जो हमारा वो रहन सहन खान पान वो से रिलेटेड भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। मैम, मोरल वो और एथिकल वैल्यू। मैम बोलो सुमन। और राजेश। मैम, मोरल और एथिकल वैल्यू। मोरल और एथिकल वैल्यू, ओके। मैम जो कोई भी काम करने का जो तरीका है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रहा है। हाँ, वेरी गुड, दिस वर्ड इज गुड। यस मैम। कि जनरेशन टू जनरेशन हम पास करते हैं अपना कल्चर। आपने जितनी बातें बताई, ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में भी यूज होती है। When we discuss organization culture, we also inculcate all these points that you just said in the class. For example, देखिए, organization culture in general का क्या मतलब होता है? Culture का मतलब होता है, it's just like a set of belief, it's set of belief, it's set of rules and regulations that we follow and we pass it on to our next generation. ये हमारा कल्चर है, जैसे हमारे पेरेंट्स से हमको मिला एंड वी विल पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? इसमें हमारा खाना पीना, रहना, बात करने का तरीका, सब कुछ आता है, पहनने ओढ़ने हर चीज का तरीका आता है, राइट? द सेम इज विथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर, जब तुम लोग काम करने लग जाओगे तब तुम लोग कल्चर को बेहतर, एक दो कंपनी जब शिफ्ट कर लोगे तब तुमको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? देन यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन विद योर करंट वन एंड यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का अच्छा होना, नहीं होना, क्या 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 रिपरकशंस तुम्हारे ऊपर कॉज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह का मैनेजमेंट अगर ऐसा है जहां कम्युनिकेशन ओपन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कॉलेज है, अगर यहाँ हम क्लास नहीं लेते हैं, मान लो कि आज मेरा क्लास सस्पेंडेड है, देन if I am least bothered about communicating it to all of you कि आज मेरा क्लास सस्पेंडेड रहेगा, तो इससे क्या होगा? इससे एक chaos बनेगा तुम लोगों में, अननेसेसरीली तुम लोग इस टाइम पे ज्वाइन करते रहोगे और ज्वाइन नहीं होगा तो परेशान होगे कि मेरा नेटवर्क खराब है, कि मैम नहीं क्लास स्टार्ट की, कि क्या हुआ, राइट? इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है और आपको कोई टीचर अलॉट नहीं किया गया है, फाइन, यू हैव जस्ट बीन आस्क्ड कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और जब फाइनल डे सबमिशन का है वो आपको बताया नहीं जा रहा है, सो देयर इज नो ओपन कम्युनिकेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन। आपको केओस होगा, आप जिस किसी एक टीचर के पास जाएंगे, फिर उनसे बोलेंगे, वो टीचर बोलेगा कि मेरा काम नहीं है, तुम उसके पास चले जाओ, फिर आप उसके पास जाएंगे तो वो टीचर बोलेगा कि नहीं, वो टीचर बोलेंगे कि वो मेरा काम नहीं है, आप उनके पास चले जाइए,
This will lead to a lot of chaos and unnecessary wasting of your time and rework. ठीक है, अगर आप मेरे पास आते हैं और अगर हम आपके रिपोर्ट में कुछ एरर निकालते हैं, आपसे कहते हैं कि ये रिपोर्ट ऐसा नहीं बनना चाहिए था, इसमें कुछ एरर है, जाओ इस पूरे, आपने स्पाइरल बाइंडिंग करवा ली, अब उस पेज को निकलवाओ, फिर से स्पाइरल बाइंडिंग खुलवाओ और करेक्ट करके डालो, हो गया. Immediately after that you've been allotted another teacher, and that other teacher will still point out some flaw in your project. इससे क्या होगा, आपके दिमाग में तो बहुत chaos होगा. इसी तरीके का chaos ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है अगर वहां की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है. और दूसरी बात देखिए, किसी भी टीचर को अगर किसी बैच का क्लास नहीं लेना है तो it becomes the ethical duty, rather academic duty to announce it to the children कि आज मेरा क्लास नहीं होगा. लेकिन ये किसने कम्युनिकेट किया है हम लोगों को? यहाँ की टॉप मैनेजमेंट ने, राइट? यहाँ की टॉप मैनेजमेंट में हमने हमें कम्युनिकेट किया है कि अगर आप क्लास नहीं लेते हैं, अगर आप मार्क क्यू लेते हैं तो प्लीज पुट इट इन द ग्रुप सो दैट अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं किया तो उसको भी बाद में मैसेज देख के तो कम से कम पता चल जाए, कोई केओस ना हो, राइट? अब सोचो कि यहाँ की टॉप मैनेजमेंट कंसर्न नहीं हो इससे, तो फिर हम लोगों को भी मतलब नहीं होगा जो लोअर लेवल पे हैं. और अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? आप लोग, क्योंकि जहां कुछ गड़बड़ होता है वहां तो यही होता है. द टॉप मैनेजमेंट इज लीस्ट कंसर्न, राइट? इसीलिए एक बैड सुपरविजन, एक लिबरल मतलब मोर देन लेस देन रिक्वायर्ड सुपरविजन भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को खराब करती है और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर खराब होता है. अंडरस्टूड? तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि बैड सुपरविजन है, वर्किंग कंडीशंस खराब है, देयर इज नो ओपननेस इन कम्युनिकेशन. आपको कुछ भी लगता है गुड और बैड, स्टिल देयर इज नो प्लेटफॉर्म टू address your problems. So these problems are the real flaws in organization culture. और जो ओडी होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, लाइक बिहेवियरल साइंटिस्ट. क्योंकि ये जो ओडी होता है ये बिहेवियरल साइंस अप्रोच से होता है. बिहेवियरल साइंस अप्रोच मालूम है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद है? Yes. Yes, ma'am. Just recall that when you were studying principles of management in your first year, did you study various approaches to management? Neoclassical theory, classical theory, Yes, ma'am. human relations theory. Yes, ma'am. Neoclassical theory में क्या था? हेनरी फ्योल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी. मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी. ठीक है. क्लासिकल अप्रोच में क्या था? ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच था. एल्टन मायो का हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट था, रिमेम्बर? और उसके बाद का जो अप्रोच था, जो मिड 90s के टाइम का था, वो था बिहेवियरल साइंस अप्रोच. इस बिहेवियरल साइंस अप्रोच में लोगों के बिहेवियर पे ध्यान दिया गया था. दिस गेव अ न्यू डायमेंशन टू लर्निंग, learning, using and giving importance to human behavior at workplace. उसके पहले क्या था? न्यू क्लासिकल अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन वाज कंसिडर्ड टू बी ए क्लोज सिस्टम. उसको अपने एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं था. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था. और ये जो न्यू क्लासिकल में हेनरी फ्योल की थ्योरी थी, टेलर की थ्योरी थी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, इन लोगों ने मोस्टली मैनेजमेंट पे ध्यान दिया और ये सोचा कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमें जैसे मन हम वैसे काम करा लेंगे. यही था ना? ठीक है. लेकिन बिहेवियरल अप्रोच थोड़ा जानिए, क्योंकि ये ओडी जो है वो पूरा बिहेवियरल अप्रोच से ही होता है. बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी में क्या हुआ था? बिहेवियरल अप्रोच में ये बोला गया कि द बिहेवियर ऑफ पीपल
the study of behavior of people is very very important in the organization. Okay, और ये हम आने वाले क्लासेस में बताएंगे कि ये बिहेवियरल साइंस अप्रोच कैसे हुआ था, लेबोरेटरी ट्रेनिंग से और सर्वे मेथड से किया गया था। किसी को बिहेवियरल साइंस का एक भी थ्योरी याद है? नाम ले सकते हैं आप लोग? एनीवन? आता है आपको, बस आपको ये मालूम नहीं है कि ये बिहेवियरल साइंस का थ्योरी है। मोटिवेशन Stages of change. मोटिवेशन की कोई थ्योरी? मोटिवेशन की सबसे पायनियर थ्योरी क्या है? मैस्लो। हाँ, अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक, उसके बाद एक और थ्योरी, मैकग्रेगर की कोई थ्योरी याद है? मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी। यस मैम। याद है? यस मैम। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच में आती है। अब इन थ्योरीज में क्या देखो, ओडी कैसे होता है, थोड़ा हम तुमको बैकग्राउंड दे देते हैं, सीधा पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बिहेवियरल साइंस अप्रोच में क्या होता है, ये अब्राहम मैस्लो में क्या था, ह्यूमन नीड को, ह्यूमन बिहेवियर को समझा गया, ह्यूमन मोटिवेशन को समझा गया, राइट। मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरी है जो इसमें दी गई, बहुत सारी, तो वो सब इतना डिटेल नहीं पढ़ाया जाता है बीबीए में, इसीलिए जस्ट बी कंसर्न्ड विद अब्राहम मैस्लोस थ्योरी एंड मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया था कि एक सर्टेन बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग्स का वर्क प्लेस पे, देयर इज अ नीड फॉर थिंग ड्यू टू which motivates people, the need motivates people to work further। सबसे नीचे था फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद इंटरव्यू का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बता देते हैं। नीड हायरार्की थ्योरी पूछा गया है बहुत बार, किसी भी बीबीए या बीबीएम या एमबीए के इंटरव्यू में जाइएगा तो पूछा जाएगा। सबसे नीचे का नीड, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, यू विल रिवाइज इट एंड देन यू रिमेंबर इट। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड थी, उसके बाद क्या था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उसके बाद था सोशल नीड, ये तीनों लोअर ऑर्डर नीड थी। अब्राहम मैस्लो ने ये बोला कि once you are done with the lower order needs, once you fulfill your lower order needs, then the individuals at workplace, they move towards the higher order needs, which is the self esteem and self actualization, right। मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी थी, ये सब बिहेवियरल साइंस अप्रोच में था ना। Yes, ma'am. फर्स्ट ईयर पढ़े तो फर्स्ट ईयर फॉर्मेट नहीं मार देना है, देयर इज अ रीजन व्हाई बीबीएम में सारा कुछ इंक्लूडेड है, वो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आप कभी भी इंटरव्यू या कहीं पे बैठेंगे जॉब के लिए तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। यू नीड टू जस्ट डोवटेल इट, ऑल ऑफ दैट, सबको जोड़ करके तब कॉन्सेप्ट समझ के और तब इंटरव्यूअर को समझाना है। मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी क्या थी? एक्स एंड वाई थ्योरी यही थी कि उसने कहा था कि एक्स थ्योरी में मैकग्रेगर ने कहा था कि द वर्कर्स को कंडेम किया था, ये बोला था कि जो वर्कर्स होते हैं वर्क प्लेस पे वो काम नहीं करना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू टेक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, they do not want to take any initiative, they do not want to contribute their utmost potential for the development of the organization, they are only concerned about their wages, their bonus, their incentive। लेकिन जब उन्होंने फर्दर रिसर्च किया तो उन्होंने थ्योरी वाई दी, ठीक है। थ्योरी वाई में क्या बताया उन्होंने कि नहीं, वर्कर्स की इतनी गलती नहीं है, the management needs to develop its skills। उन्होंने भी ये बोला कि बिहेवियर को आप समझिए और मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप कीजिए। The management should be one which should be able to draw the best out of the employees। आप में ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप किसी को थॉरली वर्कर्स को मोटिवेटेड रखें, उनको न्यू इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट करें, उनके अंदर से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी टेकन, उसका आप ख्याल रखिए। सो जहां हम थ्योरी एक्स को देख, एम आई ऑडिबल?
ओके। यस मैम। जहां हम थ्योरी एक्स को देखते हैं कि वो अगेंस्ट वर्कर था, तो थ्योरी वाई इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर द मैनेजर्स। ये था बिहेवियरल थ्योरी में। और ग्रिड वगैरह भी है, ब्लेक एंड वुड, ये सब का ग्रिड है, उतना डिटेल नहीं जाना है। तो ये सारी चीजों को, बिहेवियर को ध्यान में देख के, why I thought that the voice is not coming, because I saw Muskan at a very in a very static position. So I thought maybe the video has stopped, but later I came to realize that the video wasn't stopping. Muskan was maybe relaxing a bit. Okay. So write down further. Some characteristics of organization development are some characteristics of organization development are: point number 1, planned effort. Second, organization wide. Planned effort. Second, organization wide. Third, managed from the top. Managed from the top. Fourth, to increase organizational effectiveness. To increase organizational effectiveness and health. Fifth, through planned interventions in the organization's process. Through, ये बहुत important point है, through planned interventions in the organization's process. Using behavioral science knowledge. Using behavioral science knowledge. बिहेवियरल साइंस नॉलेज समझ में आएगा ये वाला पॉइंट? अभी समझाए? देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो. द फर्स्ट वन इज प्लान्ड. इट इज ऑलवेज प्लान्ड. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कोई विम में आकर के फैसला लेने वाली चीज नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी चेंज की जरूरत है. आप समझ सकते हैं कि घर में तुम अगर 4 लोग 5 लोग के घर में अगर तुम कुछ चेंज करना चाहो तो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. जो चला आया है वही चला आया है ना, राइट? अगर तुम कुछ चेंज करना चाहो तो कितना रेजिस्टेंस होता है. ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है. यू विल हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर अगेंस्ट योर डिसीजंस. होता है ना? तो आप सोच सकते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख ऑर्गेनाइजेशन है जो करोड़ों अरबों का टर्नओवर दे रही है. वैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फ्लॉ डिस्कवर होती है कि कोई प्रॉब्लम है और उसको चेंज करने के लिए चाहिए, वो लोगों में चेंज लाता है. लोगों में भी, एटीट्यूड में, कल्चर में. इतना चेंज लाना क्या आसान बात है? नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज प्लान्ड. पहले प्रॉब्लम का डायग्नोसिस होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुमको फीवर हो जाए, इफ यू हैव अ हाई फीवर, तो यू नो दैट देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट योर बॉडी. देयर इज समथिंग अबनॉर्मल अबाउट योर बॉडी. लेकिन ये सिर्फ एक सिम्टम है. रियल प्रॉब्लम तो तुमने डायग्नोज नहीं किया है. वो फीवर डेंगू की वजह से भी आ सकता है, वो फीवर कोरोना की वजह से भी आ सकता है, वो फीवर मलेरिया की वजह से भी आ सकता है, और दैट कुड बी अ सिंपल 3 days वायरल फीवर. राइट? राइट और नाइट? ठीक.
तुम्हारा बॉडी का फीवर आना इज अ सिम्टम, बट द रियल प्रॉब्लम इज डिटेक्शन ऑफ द एक्चुअल कॉज ऑफ दैट फीवर। अब सोचो कि 3 दिन के सिंपल वायरल फीवर के लिए तुम पूरा लिफाफा कर लो, कहीं जा करके एडमिट हो जाओ, कहीं लंबा चौड़ा बिल बना दो, विच इज सच अ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, 3 दिन क्रॉस करेगा, वो वायरल फीवर तुम्हारा खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर if you are having a problem like COVID, if you are having a problem like TB or like some serious problems, और इसका डायग्नोसिस अगर रह जाए और तुम दवा खा लो और बार बार वो फीवर आ रहा है, इसका मतलब है कि you have not sorted out the root cause of the problem, right? यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। कुछ हो रहा है बार बार, जैसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पुराने मेंबर्स जब ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जैसे पीएसयूज वगैरह के साथ भी ये चीज होती है, अगर पुराने मेंबर्स जो जिन्होंने 30 साल ऑर्गेनाइजेशन को दी, वो तो ऑर्गेनाइजेशन की रग रग से वाकिफ है, वो सब कुछ जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दे नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बट जब पुराने लोग रिटायर होने लगते हैं इन अ बिग अमाउंट, इन बिग चंक्स, व्हाट हैपेंस कि जब यंग लॉट आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब इस चीज को ऑर्गेनाइजेशन रीड आउट करने के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट बुलाता है और ये देखने की कोशिश करता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ इट, एंड इफ देयर इज एनी, हाउ टू फिक्स इट। ओके, सो दिस इज प्लान्ड। द सेकंड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड। ये जो हम ओडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मेथड्स होता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है, एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट की बात नहीं होती है। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ चेंज। ओके, थर्ड इज मैनेज्ड फ्रॉम टॉप या फिर टॉप लेवल कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोई भी ओडी जब होती है तो ये लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट चेंज इनिशिएट नहीं करता है, चेंज इंड्यूस नहीं करता है। This is always initiated by the topmost management of the organization. इसी वजह से ये बोला जाता है कि किसी भी चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल का कमिटमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अब तुम्हारे कॉलेज में कुछ न्यू रूल आ गया, ठीक है, कोई नया यूनिवर्सिटी, मान लो कि यू आर पीपीयू यूनिवर्सिटी, पीपीयू से कुछ ऑर्डर आया है कि यूनिवर्सिटी में पीपीयू से एफिलिएटेड जो बच्चे हैं उनको कुछ फलाना कोर्स चाहिए या किसी तरीके का कोई चेंज है, एंड द टॉप लेवल इन दिस कॉलेज इज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग अबाउट दैट चेंज, या फिर बहुत बहुत सीरियसनेस के साथ उस चेंज को इनिशिएट नहीं किया गया है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाई the top level commitment of any organization is very important for organization development. क्यों? मैंने आपको बताया कि ये जो ओडी करने वाले लोग होते हैं ये बाहर से भी आते हैं, बहुत मोटी फीस लेते हैं, बहुत मोटी फीस, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। टॉप कंसल्टेंट्स अपने साइंटिस्ट्स वगैरह जो होते हैं बिहेवियरल साइंस के, उनको भेजते हैं ओडी करने के लिए। कई बार ये चेंज इंटरनल पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, लेकिन टॉप लेवल की। तो when they are inducing such change, they have to be really committed. अगर बाहर के भी लोग आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो चेंज है वो तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल बताएगा ना, कि कैसा कल्चर है, कैसे काम करते हैं हम, क्या चेंजेस हैं, यहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं। Understood? So in any case, in either case, whether you are hiring a consultant from outside or you are taking the change agent from inside the organization, the commitment of the top level is very important. Okay. Next is to increase organizational effectiveness and health. Yes, ऐसे ही suddenly कुछ नहीं किया जाता है. The ultimate target is always to improve the effectiveness of the organization and overall health of the organization. Next, through planned intervention in the organization's process. Intervention किसी को मालूम है क्या होता है?
इंटरवेंशन का मतलब होता है टेक्निक, ठीक है, लिख लीजिए उसको ब्रैकेट में। इंटरवेंशन के बगल में लिख लो, पढ़ाएंगे आगे की क्लास में भी। इंटरवेंशन मीन्स टेक्निक। थ्रू प्लान्ड इंटरवेंशन मतलब थ्रू प्लान्ड टेक्निक। 2-3 टाइप की टेक्निक होती है, आगे बताएंगे हम। बिहेवियरल टेक्निक होती है, नॉन बिहेवियरल टेक्निक होती है, एंड जस्ट अदर्स। अब लिखो, ओडी मस्ट बी मैनेज्ड फ्रॉम द टॉप। उसके नीचे लिखिए, ओडी मस्ट बी मैनेज्ड फ्रॉम द टॉप, which means that the top level must have commitment, which means that the top level must have commitment and knowledge about the goals of the programs. The goals of the programs, and must actively participate in it. Goals of the programs. एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, ओडी मस्ट बी, वहां से। OD must be managed from the top. This means that top management must have commitment to and knowledge about the goals of the program, and must actively participate in its implementation. The knowledge is drawn from the behavioral sciences. मैम लास्ट लाइन एक बार और बता दीजिए मैम। Last line from where? Actively participate. So And participate in its implementations. And participate in its implementations. The knowledge drawn from behavioral sciences such as psychology, sociology, and anthropology is widely used in OD. Okay? मैम एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? Study of mankind. study of mankind. ये सब बिहेवियर को पढ़ने के लिए जरूरी होता है। देख लो HR का कितना स्कोप है अब, ठीक है। Once upon a time HR was not this important to the organizations, but after the LPG era this has become this important. Okay. Now in the next class we are going to study the characteristics and other parts of OD. This chapter is lengthy and this chapter has 2 to 3 models which you need to understand properly. वो models का जो notes है वो I'll give it to you, क्योंकि वो फिर arrange करना थोड़ा मुश्किल होगा आपको। Understood? Okay. And